ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు జవాబుదారీతనానికి వెన్నెముకగా నిలుస్తూ ప్రజలకు అటు ప్రభుత్వానికి వారధిగా ఉంటూ కరోనా కష్టకాలంలో తమ వంతు బాధ్యతగా వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వహించి సామాన్యుల సమస్యలను ప్రజాప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి సహకరించిన ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ విభాగం తరపున సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ సెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంఏ లతీఫ్ అధ్యక్షత వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా ఓబీసీ సెల్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు ఆంధ్ర పటేల్, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు శ్రీనివాస్, ఎన్ఎస్యుఐ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ షేక్, యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కుంట రవి వచ్చి సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మరియు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నాయకులు హయద్, విలాస్ దేవ్కే తదితరులు పాల్గొన్నారు. के शुभ दिन अवसर पर हमारे जिले के माइनॉरिटी सेल के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी नवयुवक ने जो आज प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत बड़ी शान की बात है। और उन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में जो गौर गरीबों को जो मदद की है वो भी यादगार है। आज अपन सोचो तो लॉकडाउन के पीरियड में अच्छे लोग घरों में से नहीं निकले। अच्छे लोग घरों में से नहीं निकले क्यों? तो मैं बच गए तो दुनिया है, कुछ हो जाएगा, मेरे बेबी बच्चे रोड पे आएंगे, ये डर के मारे नेता लोग भी बहुत लोग घर में से नहीं निकल सके। हर नंबर बिजनेस बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, कुछ लोगों को एक टाइम का खाना भी नहीं मिल सका। वो टाइम पे हमारे लतीफ साहब ने जो बाहर निकल के, और वो भी प्रेस और प्रिंट मीडिया के आपके सपोर्ट से उन्होंने जो काम किया वो यादगार है। और प्रिंट मीडिया, प्रेस रिपोर्टर्स, आप लोगों की कितना तारीफ करें उतना कम है। रात दिन वक्त नहीं, नींद नहीं, जब भी जो मसला आ गया उसके ऊपर हाजिर रहते हैं। वो छोटी बात नहीं कि आपको भी बच्चे हैं, आपको जान प्यारी है, ये सब रहते वक्त भी आप अपने को कुछ हुआ तो हुआ, मगर आप गौर गरीब लोगों को, जनता को कुछ होना नहीं चाहिए, और उनके हिफाजत के वास्ते आप लोगों ने अपनी जान बाजी लगाई। प्रेस रिपोर्टर मीडिया ने, ये छोटी बात नहीं। आज बच गए अपन सब, बहुत खुश है, बहुत बातें कर रहे हैं, मगर वो टाइम पे बाहर निकलने वाला बहादुर సన్మాన గ్రహీతలుగా విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీ అందరికీ కూడా పేరు నమస్కారాలు. రాజకీయ పార్టీ సమక్షంలో ఏదైతే మాట్లాడలేం, మీ కొరకు ఒక వర్డ్ మాట్లాడేసి ముగిస్తాం. అందరం కూడా ఈరోజు ప్రపంచాన్ని వణికించింది కరోనా, అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈరోజు బైసాలో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు, చైనాలో కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్రపంచానికి వణికించింది కరోనా. మరి ఆ కరోనాకు వణికించింది
మొదటగా వైద్యులు, రెండో వ్యక్తులు పోలీస్ సిబ్బంది, మూడో వ్యక్తులు మీడియాని అనుకుంటున్నాను. అంటే ఆ కరోనా ఎంత భయంకరమైందో దానికంటే భయంకరంగా మరి ఈ మూడు వ్యవస్థలు ముందుకు వచ్చి పనిచేసినాయి కాబట్టి ఈరోజు కరోనా నుంచి మనం దూరం అయ్యాం భారతదేశం. దాంతో పాటు సేవా సంస్థలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ యొక్క సేవా రంగాన్ని కూడా మరి రకరకాలుగా సేవలు అందించారు. మరి ఆ సేవా రంగం సంస్థలు కూడా వారికి కూడా ఈ వేదిక నుండి వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేక అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. అవినీతిని అంతం చేయాలన్నా, అవినీతిని గుర్తించాలి అన్నా, నీతిని గుర్తించాలి అన్నా, మంచిని ఈ సందర్భంగా వేదికలు అలంకినటువంటి పెద్దలు, సభాధ్యక్షులు, గౌరవనీయులైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనారిటీ సెల్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంఏ లతీఫ్ గారికి, అదేవిధంగా అతిథులుగా పాల్గొన్నటువంటి గౌరవనీయులు పెద్దలు ఓబీసీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు పెద్దలు ఆనందరావు పటేల్ గారికి, అదేవిధంగా మీడియా మిత్రులు బషీర్ అన్న గారికి, అజర్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా హయాత్ బాబాయ్ గారికి, విలాస్ అన్న గారికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ టౌన్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి వర్ణం శ్రీరన్న గారికి, లతీఫ్ గారికి, హయాత్ బాయ్ గారికి, విలాస్ అన్న గారికి, శ్రీరన్న గారికి, మీడియా మిత్రులకు, ప్రింట్ మీడియా మిత్రులకు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ముందుగా అభినందనలు. ఈరోజు కరోనా కష్టకాలంలో వెన్నుదండగా నిలిచి ప్రజలకు సమాచారం చేరవేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మీడియాకు నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న బీద పరిస్థితుల్లో రేషన్ రాకుంటే కూడా, చిన్న పరిస్థితులు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా మీడియాను చిత్రీకరించి మొత్తం హైలైట్ చేసి, బ్రేకింగ్ న్యూస్లు చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని గడగడాలించి రేషన్ కానీ, పప్పు దినుసులు కానీ, కూరగాయలు కానీ పంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన మీడియాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. कर देता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे सीनियर्स जो साफ़ी है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपको कहे हैं और मैं उनका शुक्र मानता हूँ कि उर्दू सहाफ़त को जो बरकरार रखे हैं माशाल्लाह। मैं इसलिए मैं सहाफ़त सिर्फ खामोशी का इक़्तिदार नहीं होता, सहाफ़त की गहराई उससे दिल से टटोली जाती है। पहले अमन था ज़माने को, गरूर था सहाफ़त उर्दू पे, कहीं मिट नहीं जाती है कलम सहाफ़त उर्दू की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिसके हुनर बोलते हैं। तो सहाफ़त वो चीज़ है, सहाफ़त का इस्तेमाल कीजिए। सहाफ़त खामोश है, सहाफ़त किसी का दबाव पे नहीं चलती। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। और मेरे सीनियर जो साफ़ी है माशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, उनके मुकाबले में मैं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली जनाब आनंदराव पटेल साहब, साबिक़ा मार्केटिंग चेयरमैन और मुत्तहिदा सेल आदिलाबाद के अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी अब्दुल लतीफ़ साहब और तमाम सहाफ़ी बिरादरान जनाब अज़हर अहमद खान साहब, बशीर साहब, मुज़म्मिल साहब, आरिफ साहब, आहद साहब और रब्बानी साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे सहाफ़ी बिरादरान और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, ये बहुत ही खुशाइन तकरीब है जिसके लिए सबसे पहले मैं जनाब अब्दुल लतीफ़ साहब कांग्रेस अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी को इस कामयाब प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि सहाफ़ी खिदमत जो होते हैं उनकी खिदमत का कोई मोल नहीं होता। सहाफ़त और सहाफ़ी जो खिदमत अंजाम देता है उसके अवध में वो किसी ख्वाहिश का मुतमन्नी या किसी ख्वाहिश का मुतमन्नी नहीं होता, बल्कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं ये प्रोग्राम उनकी खिदमत के एतराफ़ के अवज़ में जो रखा गया है, ऐसे प्रोग्रामों के जरिए ऐसे तहनीती तकरीब को वो एक एजाज के तौर पर कबूल करता है। लिहाजा अगर सहाफ़त के ताल्लुक से सोचा जाए तो सहाफ़त जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे इस डेमोक्रेसी कंट्री में, इस जमहूरियत मुल्क में इसको चौथा सुतून करार दिया गया है।
फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारा मीडिया है, ये हमारी सहाफत है और सबसे बड़ी ताकत है। और खुशी इस बात की है कि हमारे एरिया के जो सहाफी हैं वो हर हाल में पूरी दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने सहाफत के फराइज अंजाम देते हैं। और ये एक ऐसा पेशा है, सहाफती पेशा एक ऐसा पेशा है जिसके लिए कई कुर्बानियां देना पड़ता है। हर हालात में, चाहे वो कैसे भी हालात हो, उनको फील्ड पे उतर के काम करने की जरूरत पड़ती है। इसी एतबार से मैं कहता हूं कि ये पेशे का कोई मोल नहीं है। रहा सवाल ये हमारे जो सियासी कायदीन बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी सियासत और हमारी सहाफत ये कोई अलग चीज नहीं है। सियासत और सहाफत ये दोनों का आपस में बहुत मेल जोल है, क्योंकि सहाफत जो होती है, सहाफी जो होता है, जो बरसर इख्तिदार होते हैं, जो हुकूमत होती है, हुकूमत और आवाम के दरमियान ये सहाफी एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। ये दोनों के दरमियान एक रास्ता होता है सहाफी, ये सहाफत, क्योंकि हुकूमत के जो स्कीमात होते हैं वो अपने कलम के जरिए आवाम तक पहुंचाता है, हुकूमत की तमाम कारकर्दगी को आवाम तक पहुंचाता है। ये सहाफी का काम होता है। बल्कि सहाफी ये प्रेस, ये इख्तिदार, ये सियासतदानों के लिए, ये पॉलिटिक्स के लिए प्रेस एक जो है ना एक एडवाइजर के तौर पे काम करता है, एक मुशीर होता है उसका। इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए जो सियासी कायदीन की तरफ से की जाती है, उससे रिपोर्टर्स की एक हिम्मत अफजाई होती है और होना भी चाहिए। इसके लिए मैंने दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और अपने ये सेकुलर कायदीन जो कांग्रेस पार्टी है, हकीकतन एक सेकुलर पार्टी है, मैं इन कायदीन से और खास तौर पे हमारे आनंदराव पटेल साहब, लतीफ साहब, ऐसे जो भी कायदीन है जो सियासत से ताल्लुक रखते हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि ये जो फिरका परस्ती का दौर चल रहा है, जिसमें आजकल कुछ मीडिया वाले भी इसके अंदर उस जहनियत से जो काम कर रहे हैं, जैसा कि कोई अखबारात हो या कुछ चैनल ऐसे भी हैं, बात चैनल जो एक कारपोरेट टाइप के लोगों के हाथों में बिके हुए हैं, जो अपने चैनलों के जरिए या अपने अखबारात के जरिए हकीकत को उजागर करने के बजाय गैर जरूरी चीजों को, जिससे फिरका परस्ती बढ़ रही है, जिससे मुनाफरत फैल रही है, ऐसे लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फिरका परस्ती के माहौल में ये जो कारपोरेट टाइप के लीडर्स, ये जो अखबारात, ये जो चैनल जो मुनाफरत फैला रहे हैं, मैं मेरे मीडिया के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मीडिया वाले अपनी कलम के जरिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके ऐसी तहरीरें लिखे कि जिसकी वजह से बजाय मुनाफरत के, बजाय एक दूसरे के खिलाफ होने के, हमारी कलम, हमारी कौम की एकजहती और हमारे अमन की बरकरारी की फिजा को बरकरार रखे, हम मीडिया वाले ऐसी कलम का इस्तेमाल करें। ये मैं जो है अपने साथियों से गुजारिश करता हूं। और सियासी कायदीन से भी कहना चाहता हूं कि आप हालात पर नजर मत डालिए कि हम इस टाइप से जाएंगे तो हमको वोट आएगा, उस टाइप से जाएंगे तो वोट आएगा। फिरका परस्ती का दौर एक अंधेरे के मानिंद होता है। अगर आप हक के तौर पर अगर काम करेंगे और हकीकत बंदी पे अगर काम करेंगे तो याद रखो ये अंधेरा छटने वाला है और उजाला आने वाला है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा मैं तमाम हमारे सियासी कायदीन से कि आप जब सियासत में काम कर रहे हैं तो खिदमत खल्क का जज्बा, आवाम की भलाई के जज्बे को दिल में रखते हुए काम कीजिए, ना कि अपने मफाद को, तभी आप कामयाबी हासिल करेंगे। लिहाजा मैं और एक बार मजीद भाई हमारे ये जो मीडिया के जो खिदमात है, जो सहाफियों के जो खिदमात है, इसके एतराफ में आप जो प्रोग्राम रखे हैं, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले हालात में हमारे यहाँ के जिसकी वजह से उनका बहुत बड़ा रोल है यहाँ के पीस रहने में भी, सेकुलर सियासी कायदीन के अलावा। और मैं मजीद हमारे सियासी कायदीन से गुजारिश करूंगा कि आप ये जो प्रोग्राम किए हैं, इसके अलावा भी आप ये ना समझें कि हम प्रोग्राम कर दिए मीडिया इससे खुश हो जाएगा। मीडिया तो हकीकत को ही जाहिर करेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे सियासी कायदीन इससे खुश हो या नाराज हो। मीडिया का अपना फर्ज है कि जो हकायक जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं उसको सामने लाके आवाम तक पहुंचाया जाए, यही मीडिया का काम है। लिहाजा मैं अपने मीडिया के तमाम यहाँ पर मौजूद
तमाम रिपोर्टर्स और सियासी कायदीन का जो ये इस ऑर्गेनाइज किया है इस प्रोग्राम का, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा मीडिया और ये सियासी कायदीन सच्चे दिल से सही खिदमत करने के जज्बे से काम करेंगे। यही चंद अल्फाज कहते हुए मैं अपनी जगह को खुदा चीजों के बाद हमारे लतीफ साहब भी एक सोशल वर्क में जो काम करे, उनके लिए भी एक हाल मीडिया के तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन करने का है। और हाल हमारे हयात साहब और बिल्ला साहब जो भी है मिलजुल के जो सो अभी तक जो काम करे, आगे भी चल के मेरी नेक ख्वाहिश है कि आगे चल के भैंसा डिवीजन में ऐसी आगे चल के जो सो रफीवान जाप दे। నేటి సమావేశానికి ఆదైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా రిపోర్టర్లందరికీ నా యొక్క ఉదయం తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా అయితే ప్రదీప్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియదు. ఎందుకంటే మీడియా అనగానే మీడియా రాసుకుంటూ పోతాడు అనేటటువంటి టైంలో రాజకీయాలు పక్కన పెడితే వ్యక్తిగా ఆ రిపోర్ట్ వాడు దేనికి వరకు వచ్చుడు, పైన వరకు వచ్చుడు, దేనికి వచ్చు అన్నటువంటి సమయంలో మీరు మాకు సన్మాన కార్యక్రమం పెట్టడం చాలా అర్జించిన విషయం. మీకు మరొకసారి థ్యాంక్ చెప్పుకుంటూ, నేటి ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను, ఒక వ్యక్తిని మీకు తీసుకొని ఆ యొక్క నమస్కారాలు, తోటి మిత్రులకు కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. ఈ మీడియా అంటేనే ఏదో అంటే కొంత పర్సనల్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్టికల్ తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. మనం చేసేది ఒకటే, ఏదైనా కానీ కుంభకోణాన్ని కానీ ఏది కానీ బయటకు పెట్టడమే మన పని. అంటే డెమోక్రసీలో మనం చెప్తాం ఒకటి, దేశంలో 4వ పిల్లర్ అంటారు మనకి. ఆ పిల్లర్ అనేది మన దగ్గర చూపెట్టడమే మన పని. ముఖ్య ఉద్దేశం అదే. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లతీఫ్ గారు, పటేల్ గారు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టారు. దీనికి మనమందరం హాజరైనాం. దాన్ని స్వీకరిస్తూ మనమందరం స్వచ్ఛందంగా మంచిగా పనిచేసి మనం మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని నా యొక్క హాబీ. ధన్యవాదాలు. काफी साथ मेरे को नहीं मालूम होते। और हमारे जिला जनरल सेक्रेटरी हमारे एजीसोई के अमजद और यहाँ बैठे हुए हमारे रब्बानी साहब, बल्कि हमारे मुजम्मिल साहब और जो भी मुझे नाम नहीं मालूम आए हुए, हमारे खान साहब, महूरे रिपोर्टर जो है, और हमारे शेख आहा साहब जो अपनी जो है शेख आयसल अपने आप में एक अंजुमन है, एक हमारे युवा नौजवान जो प्रेस गार्जियन सेक्रेटरी, ये आए हुए हमारे अवाम तरीके तमाम सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेरी एक मैं नाचीज, एक छोटा अदना, मैं हमेशा छोटा बन के रहता हूँ। मैं मेरी दावत पर यहाँ सब तशरीफ लाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, खैर मुक़द्दम करता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा आदाब। अब ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ना ही तो इसमें कोई मेरा मफाद है, ना ही मुझे ऐसा नहीं है कि मैं प्रोग्राम करके तुम लोगों को शाला डाल के भाषण करके मेरे न्यूज़ लिखो बोल के करने को मैं नहीं बुलाया। मेरा बुलाने का मकसद ये क्या है बोले तो, यहाँ पर कहाँ ना कहीं हर कोई लोग अब क्या करते बोले तो सबको सम्मान करते, मगर जिस वक्त हमारा भारत देश अंग्रेजों के कब्जे में था, जिस वक्त हमारा भारत देश के ऊपर ब्रिटिश जो राज करे, तो कहीं ना कहीं ये सहाफत का अहम रूल है। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर सब लोगों को देख के, यहाँ सबको देख के ऐसा महसूस होता कि हमारा दस्तूर का जो 14 सुतून है उसको कोई भी कभी भी नहीं हरा सकता। ये आज दलील यहाँ पे स्टेट से मुझे नजर आ रही, यहाँ पे हिंदू नहीं, यहाँ मुस्लिम नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू मीडिया, सब मीडिया आज बैठे हुए। तो ये बात की दलालत है, ये बात का इशारा है कि हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा जो सहाफत है, जो हमारा जर्नलिस्ट है, जो हमारी मीडिया है, जो दस्तूर का 14 सुतून है, इसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि हम मीडिया के जरिए से हम कहीं आपकी तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है मीडिया की तहरीर का, उससे दिली खुशी होती है, क्योंकि रिपोर्टर जो है हमेशा आवाम की खिदमत के लिए आगे रहता है।
और उसकी कोई तहरीर पेश करना वो तो बहुत बड़ी बात है। और लतीफ साहब ने कर दिखाया और ये रास्ता जाने में मंजिल मगर लोग बढ़ते गए, कारवां बनता गया। तो लतीफ साहब जो है लॉकडाउन में जो गरीबों की खिदमत करे वो हम देखे, हम न्यूज़ भी कवरेज करें, तमाम उर्दू और तेलुगु मीडिया में डालेगी। और लतीफ साहब की खिदमत काबिल सताइश है। हम मीडिया की तरफ से बिल्कुल उनकी हर तरीके से भरपूर मदद करेंगे। कभी भी कोई भी प्रोग्राम उनको शिरकत करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। इतना कहते हुए अपने जगह लेंगे। వేదికపై అలంకరించినటువంటి పెద్దలు ఆనందరావు పటేల్ గారికి, మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు లతీఫ్ గారికి, నాతోటి మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు. రిపోర్టర్స్కి కరోనా టైంలో అందరికీ చాలా కష్టపడ్డారు. కరోనా అనక వాళ్ళ ప్రాణాన్ని తెగించి పనులు చేసినందుకు మన మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు లతీఫ్ భాయ్ సన్మానిస్తున్నారు. అందరూ ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సెలవు ఇస్తున్నాను. शहनशीब पर तशरीफ फरमा मेरे प्रेस फील्ड के साथियों और कांग्रेस काउंसिलर श्रीनिवास और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी जिला इब्न लतीफ साहब और कांग्रेस रियासती ओबीसी नायब सदर आनंदराव पटेल साहब और तमाम साथियों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये जो रिपोर्टर्स के लिए तहनीती तकरीब प्रोग्राम रखा गया माशाल्लाह काबिल सिताइश है। इस कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के काबिल तखलीक प्रोग्राम की हम तमाम रिपोर्टर्स की जानिब से इजहार तशक्कुर किया जाता है कि रिपोर्टरों की खिदमत को सराहते हुए कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम रखा। और इसके साथ साथ हम रिपोर्टर्स कांग्रेस के जो खिदमत है, कांग्रेस के अखिलियती जनरल सेक्रेटरी एम एल लतीफ की जो खिदमत है, इनकी भी खिदमत की हम सराहना करते हैं। जो कोरोना वबा और लॉकडाउन के संगीन को नागहानी सूरत हाल में अपनी जान की परवाह किए बगैर कई गरीब व मुस्तहिक अफराद के मदद के लिए हर वक्त हर दम तैयार रहते हुए कई खिदमत अंजाम दी, कई मौकों पे अवाम के दरमियान रहे, वो काबिल सिताइश है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। भारत देश के ऊपर ब्रिटिश जो राज करे तो कहीं ना कहीं ये सहाबत का अहम रूल है। मुझे आज बड़ी खुशी हो रही कि यहाँ पर सब लोगों को देख के, यहाँ सबको देख के ऐसा महसूस होता कि हमारा दस्तूर का जो 14 सुतून है उसको कोई भी कभी नहीं हरा सकता। ये आज दलील यहाँ पे स्टेट से मुझे नजर आ रही, यहाँ पे हिंदू नहीं, यहाँ मुस्लिम नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू मीडिया, सब मीडिया आज बैठे हुए। तो ये बात की दलालत है, ये बात का इशारा है कि हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा जो सहाफत है, जो हमारा जर्नलिस्ट है, जो हमारी मीडिया है, जो दस्तूर का 14 सुतून है, इसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ इसलिए बुलाया कि हम मीडिया के जरिए से हम कहीं ना कहीं हम ये देखें कि हम माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर पीस को कैसा कायम कर दे। ये तो राजकारण चलते आता, इसका राज गया उसका राज आता, और हम तो रहते, हम मिलकर रहते। तो मेरा ये बोलना है कि हम मीडिया के जरिए जहां तक भी हो सके अमन की कोशिश करना, पीस की कोशिश करना बोल के। क्यों? तो ये मीडिया ऐसी चीज है। हमने देखा है लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा है कई लोग जो है घरों में बैठ गए हैं। एक पुलिस वाले साहब, पुलिस ब्रादर्स वर्कर है, जो गवर्नमेंट ब्रादर्स जो भी ड्यूटी से डिपार्टमेंट वाले वर्कर है, उससे ज्यादा कहीं अगर कोई करे तो मीडिया वाले करे। सब घरों में बैठ गए, पॉजिटिव वातावरण के आप लोग जाके अपने जानवरों को छोकों में डाल के अपनी जान की परवाह नहीं करके आप लोग क्या करें, पूरा कवरेज करें। तो ये क्या है, सहाबत अगर नहीं होती तो मैं समझता हूँ हमारा भारत देश कभी आजाद नहीं होता था। तो सहाबत का वो रूल है, सहाबत को समझने की जरूरत है। आज लोग क्या समझे सहाबत को, वो क्या है, वो गाय की चिल्लत, ऐसा नहीं है। सहाबत को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। अगर सहाबत नहीं होती तो हमारा देश आजाद नहीं होता। इसी हालत में 1857 में जब सहाबत का आगाज हुआ, उसी तरह हमारे मौलाना अबू कलाम आजाद
1912 के अंदर कलकत्ते से अल हिलाल का जो है ना इब्तिदा करे, फिर 1912 में जो है मौलाना जो है साहब जो है इसे